Assalamu alaikum students. Welcome to Effects of Stats. Topic of the day is sampling distribution. Sampling distribution of X bar. Let's start it. A sampling distribution is a distribution of all possible values of statistic. Statistic means any measure of sample for the given size sample selected from the population. Sampling distribution basically क्या है जी कि हम statistic के लिए कि sample की measurement से हम population के लिए जो results अक्स करते हैं उसके लिए हमें sampling is a technique to select a sample. So, for example, suppose either sample results are correct or misleading. Sampling distribution. Sampling distribution is a theoretical distribution of statistic. Statistic क्या है जी? Any measure of sample is called statistic. That is sample mean, sample quotient, etc. obtained through the large number of sample drawn from the specific population. A probability distribution consisting of all possible values of a sample statistic is known as a sampling distribution. Sampling distribution की एक और definition है probability distribution जो बेस कर रही है किस पे possible values of sample statistic of all possible values of sample statistic is known as a sampling distribution. Sampling distribution of mean. हम मीन के लिए कैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ पॉपुलेशन डाटा is defined as the theoretical probability distribution of sample means which are obtained by extracting all the samples having same size from the given population. हम पॉपुलेशन के सिलेक्टेड आइटम्स ड्रॉ करते हैं, उनका सैंपल ड्रॉ करते हैं और एट द एंड वेरीफाई करते हैं कि आइदर sample mean is equal to the population mean, that is population parameter. ये क्या view population parameter. Standard error. The standard deviation of sampling distribution for statistic is called standard error. Standard error sigma x bar is equals to sigma over n if sampling is done with replacement. अगर sampling with replacement से done की जा रही है means selected item is again put back in the population, then sampling is called with replacement. On the other hand, if sampling is based on without replacement, means selected item is set aside from the remaining elements. Sigma x bar is equals to sigma over root n into square root n minus n over n minus 1. First question है जी हमारा, draw all possible samples of size 2 with replacement from the population 2, 4, 6. Make the sampling distribution of sample mean and find its mean and standard deviation. Verify results. Mu x bar is equals to mu and second property sigma x bar is equals to sigma over n. आज का लेक्चर हम जितनी बात करेंगे वो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट पर। और कीजिए यहाँ पे साइज कितना है 2 और पॉपुलेशन क्या है 2, 4, 6. First of all, you should draw the number of possible samples with replacement. Formula क्या है जी? n की power small n, capital N population size, small n is a sample size. 3 का square size 2 रखना है, it means 3 का square is 9. How to draw the 9 samples? एक इंतहाई easy technique आपको बताई जा रही है, very simple approach towards sampling. x1 9 by 3 total samples by capital N. 9 by 3 3 x2 3 by 3 again 3 जो आपकी पॉपुलेशन का साइज है 1. नाउ नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट कैपिटल N की पावर स्मॉल n इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर गिव्स अस 9. सैंपल वैल्यूज क्या हैं जी? सबसे पहले 9 अपने सैंपल के नंबर ड्रॉ कर लें 1 to 9. अब सैंपल वैल्यूज क्या हैं जी? x1 और x2 तो साइज 2 है. x1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3 कि हर एंट्री 3 टाइम आए, 2 भी 3 टाइम, 4 3 टाइम और 6 3 टाइम. बट रिमेंबर यू शुड ड्रॉ इन सेम ऑर्डर 2 3 टाइम, 4 3 टाइम एंड 6 3 टाइम. एंड x2 में हर वैल्यू 1 टाइम, 2 3 टाइम, 4 3 टाइम, 6 3 टाइम. देन 2 4 6, 2 4 6 एंड 2 4 6.
you should calculate sample mean. Sample mean किसके इक्वल होता है जी? x bar is equals to sum of x over n. 2 plus 2 divided by 4 by 2, that is 2. 4 plus 2 6, 6 by 2, that is 3. 6 plus 2 8, 8 by 2 4, and so on. Now sampling distribution of x bar. x bar सबसे पहले वो तमाम वैल्यूज प्रीवियस स्लाइड जो यहाँ पे आएंगे, you should write just one time. 2 3 4 5 6 और कीजिए, कुछ वैल्यूज रिपीटेड हैं. 3 जो है वो 1 2 2 टाइम्स आया, 4 1 2 3 टाइम्स आया, बट यू शुड राइट ओनली वन टाइम. 2 3 4 5 and 6. f is a frequency that repeats the value कितनी दफ़ा रिपीट हुई है. 2 1 टाइम, 3 again, 2 टाइम, 4 3 टाइम, 5 2 टाइम, and 6 1 टाइम. f of x bar, that is frequency of x bar. कितने सैंपल्स थे जी? 9. तो 1 बाई 9, उसका सम भी 9 ही आना चाहिए. रिमेंबर, इसका सम भी 9 आना चाहिए. 1 बाई 9 के एक्स बार के लिहाज से कर रहे हैं. 2 बाई 9, 3 बाई 9, 2 बाई 9 और 1 बाई 9. 9 बाई 9 इज 1 और इसका सम मस्ट बी इक्वल टू 1. नाउ फॉर म्यू एक्स बार या ई एफ एक्स बार, किस तरह से एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स बार के साथ. 2 into 1 by 9, 2 by 9, 3 into 2 by 9, 3 to the 6, 6 by 9, 4 into 3, 4 3 the 12 by 9, and so on. और इसका सम कितना आ जाता है जी? डिनोमिनेटर सबका सेम है तो 9 न्यूमरेटर को ऐड कर लें, 36 by 9. In the same way for variance, x bar का स्क्वायर into f of x bar. x bar का स्क्वायर, हर x bar का स्क्वायर लेना और मल्टीप्लाई करना है f of x bar से. 2 का स्क्वायर 4, 4 into 1 by 9, 4 by 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 2 by 9, 9 to the 18 by 9, and so on, and sum is 156 by 9. Sampling distribution of mean and variance are formulas. E of x bar is equals to sigma x bar into f of x bar, 36 by 9, that is 4. और variance of x bar इसके इक्वल है जी सिग्मा x bar का स्क्वायर f of x bar माइनस सिग्मा x bar into f of x bar होल का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर. ये वाली वैल्यू हमने पुट की 156 by 9 माइनस मीन का, दैट इज 36 by 9, 4 4 का स्क्वायर 16. सिंप्लीफाई किया, वेरिएंस ऑफ x bar इज इक्वल टू 1.33. नाउ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन. x क्या है जी हमारा? पॉपुलेशन क्या है? 246. सिग्मा x क्या होगा? इन सब का सम दैट इज 12. और वेरिएंस you should square each value of population. 2 का स्क्वायर 4, 16, 36. सिग्मा x स्क्वायर इज 56. चैप्टर नंबर 4 बुक 1 आपने ये सारी टेक्निक्स वहाँ से लर्न आउट कर चुके हैं. म्यू इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन सिग्मा x ओवर n. कितना है सिग्मा जी? 12. और कैपिटल N वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन 1 2 3 3. सिंप्लीफाई किया 4. नाउ सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n होल का स्क्वायर 56 by 3 माइनस ये वाला मीन दैट इज 4 होल का स्क्वायर 2.66 आ जाता है आपका पॉपुलेशन का वेरिएंस. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स. E of x bar is equals to mu. E of x कितना है? म्यू. और ये बोथ इक्वल टू 4. ये पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन both are equal to 4. Now variance of x. Variance of x bar is equals to population का variance divided by sample का size. Population का variance कितना था? 2.66 by 2. 2 आएगा तो sample size क्योंकि 2 है तो variance of x bar is 1.33. That is equal to the variance of sample. Okay जी? Hence prove that. Second question हमारा, a certain tube produced by a company have mean lifetime of 900 hours and standard deviation of 100 hours. The company sent out 2000 lots of 100 each tube each.
compute the mean and standard deviation of sampling distribution of sample mean if sampling is done with replacement and without replacement. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ गिवन है. You should just put the values in formula and calculate the answers. If sampling is done with replacement, then mu x bar is equals to mu. वो गिवन है 900, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. एंड सिग्मा एक्स बार, sigma x bar, sigma x bar if sampling is done with replacement, sigma over under root n. sigma कितना गिवन है जी 100 और n कितना है सैंपल का साइज 100. सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 10. if sampling is done without replacement, then mu x bar is equals to mu again is 900. डिफरेंस आ जाता है जब स्टैंडर्ड एविएशन हम फाइंड करते हैं. स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर n square root n minus n over n minus 1 if sampling is done without replacement. By putting the values, sigma x bar is equals to 9.75. Got it? Now another question, if sampling distribution या sampling distribution of size 3 with replacement, अगर हमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया जाए जिसमें सैंपल का साइज 3 कहा जाए, ओके जी, अगर साइज 3 कह दिया जाए, देन व्हाट टू डू. वेरी इजी अप्रोच है जी. सेम पॉपुलेशन जो इससे पहले हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में थी. देयर आर 3 डिजिट्स इन अ पॉपुलेशन 2 4 6. ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट एंड फाइंड द सैंपल मीन एंड वेरिएंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल possible samples of size, all possible samples with replacement. कैपिटल N की पावर स्मॉल n, कैपिटल N पॉपुलेशन कितना है 3 की पावर 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27. x1 उसी तरह से दिस वन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का साइज दैट इज 3, 7 by 3 9, x2 9 by 3 3, x3 3 by 3 is 1. इस तरह से आप सैंपल्स विदाउट एनी मिस्टेक विदाउट एनी एरर आप बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड टाइम में सॉल्व हो जाएगा. ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3, 3 का क्यूब 27. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू शुड राइट दी सैंपल नंबर 1 to 27. x1 में क्या करना है, हर वैल्यू लिखनी है आपने 3 टाइम. 2 4 6, x1 की वैल्यू क्या है जी 9, 2 9 टाइम, 4 भी 9 टाइम्स 18 टाइम्स और 6 भी 9 टाइम्स 27. x2 में हर वैल्यू 3 टाइम 2 4 6 3 टाइम अगेन 2 3 टाइम 4 3 टाइम एंड लास्ट वैल्यू 6. नाउ फॉर x3 की वैल्यू होती है 1, हर वैल्यू 1 टाइम आए 2 4 6 2 4 6. मैंने इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कौन सी वैल्यू किस सीक्वेंस में आई. 2 4 6 2 4 6 and up to last value 2 4 6. and fourth column is sample mean x bar. x bar कैसे फाइंड करते हैं, x1 plus x2 plus x3 divided by 3. 2 plus 4 2 plus 2 plus 2 that is 6 by 3. 4 plus 2 6 plus 2 8 by 3 and so on. आप इन सबके मीन फाइंड करें up to last sample 27. now सैंपल मीन को ध्यान से देखना है कौन सी वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है. हर वैल्यू को यू शुड राइट जस्ट 1 टाइम. सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार हर वैल्यू 1 टाइम आए 6 by 3 8 by 3 10 by 3 12 by 3 14 by 3 16 by 3 18 by 3. एफ अगेन कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है यू शुड राइट. और याद रखिए फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू 1 टाइम आए, ये इसका चेक है. अगर आपकी पहली वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है तो इट मीन्स कुछ गलत है. कि लास्ट वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है तो भी कुछ गड़बड़. एफ ऑफ एक्स बार हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे इसके सम से. इसका सम 27 है, 27 ही हमारे सैम्पल्स थे. 1 by 27 3 by 27 एंड सम कितना आता है 27 by 27 इज इक्वल्स टू 1 एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार. इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा ई ऑफ एक्स बार या म्यू एक्स बार 6 by 3 multiply 1 by 27. 6 1s are 6, 3 into 27 81, 8 into 3 24 और 3 into 27 81.
इन द सेम वे हर न्यूमिनेटर को लास्ट वैल्यू इस तरह है 18 इंटू 1 18 और 27 इंटू 3 81। सबके डिवाइजर में सेम नंबर आना चाहिए सोल्यूशन, सेम नंबर आ गया 81। अब न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लें 324 बाई 81 इन द सेम वे और वेरिएंस एक्स बार का स्केयर मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स बार, इस होल वैल्यू का स्केयर लें। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि जस्ट न्यूमिनेटर का स्केयर लेते हैं और डिनोमिनेटर को इग्नोर करते हैं, तो आपका आंसर रॉन्ग आए। 6 का स्केयर 36, 9 का स्केयर 3 का स्केयर 9, 6 का स्केयर 36 इंटू 1 36, 3 का स्केयर 9, 9 इंटू 27 243 और डिनोमिनेटर सबका सेम है, मल्टीप्लाई 27 सबका डिवाइजर 243 ही है। न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे 4104 बाई 243। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस E of x bar sigma x bar into f of x bar is equals to 324 by 81 is equals to 4. E of x bar is equals to 4. For variance sigma x bar का square f of x bar minus sigma x bar into f of x bar whole का square, यही वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट की और इसमें से लेस कर दी कि क्या आता है 0.88, वेरिएंस ऑफ x bar 0.88। नाउ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आर, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन कैसे फाइंड करना है, जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। x इंटू एक्स पॉपुलेशन की वैल्यूज 246, इनका स्क्वायर दैट इज 56, म्यू सिग्मा x और कैपिटल N 12/3 4, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन बाय वैल्यूज 2.66। नाउ इट्स टाइम फॉर वेरिफिकेशन। E ऑफ x बार तो हमें क्लियर है, म्यू इज इक्वल टू 4 और वेरिएंस ऑफ x ये हमने चेक करना है। सिग्मा स्क्वायर 2.66 डिवाइडेड बाय 3, हमारा सैंपल का साइज भी 3 था 0.8866 और यही वैल्यू आती है जी हमारे सैंपल के वेरिएंस की 0.88। क्लियर जी? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ईमेल मी एट दिस ID। थैंक्स स्टूडेंट।